بھارت نے جنگ مسلط کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ جیسی دہشت گردی کروا کے پاکستان پر الزام لگائے گا. بھارت کشمیریوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے. بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل کر آخری کارڈ کھیل لیا. وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو. مقبوضہ کشمیر ایک بین الاقوامی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. اس پر بہت سی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں موجود ہیں اور ان کو بنیاد بنا کر ہم نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل جانے کا. پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں لے جانے کا اعلان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کا مقبوضہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینا غلط ہے. 28 ممالک کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں جاری جبر اور تشدد سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نیا ناٹک رچا سکتا ہے. ہم کسی بھی جانب کے خلاف اپنا تحفظ کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی کا 189 ممالک کو خط. بھارتی جانب کا معاملہ اٹھا دیا. کہاں بھارت کے گھناؤنے اقدام نے خطے کی گمبھیر صورتحال کو مزید سنگین کر دیا. بھارت نے کشمیریوں کو خود مختاری سے محروم کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. آرٹیکل 370 کا خاتمہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے. سنویدھان پہ حملہ کرنا بند کرو. بند کرو. بند کرو. کشمیر پہ حملہ کرنا بند کرو. 370 واپس لاؤ. واپس لاؤ. واپس لاؤ. کشمیری جنتا سنگھرش کرو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. سنویدھان پہ حملہ نہیں سہیں گے. نہیں سہیں گے. نہیں سہیں گے. اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی میں سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنا تشویشناک قرار دے دیا. مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے خلاف سعودی عرب کی شدید مزاحمت. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی گرفتاریوں اور پابندیوں کے اطلاق پر تحفظات ہیں. پاکستان ریلوے کا سمجھوتا ایکسپریس بھی بند کرنے کا فیصلہ. آج آخری ٹرین بھارت کے لیے روانہ ہوئی. وزیر ریلوے شیخ رشید نے بتایا بھارت کو ٹرین مسافر سمیت واپس لے جانے کے لیے کہہ دیا. شیخ رشید نے ایک بار پھر جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. مظفر آباد سری نگر بس سروس کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا. بھارت کا غرور چکنا چور. پاکستان کے سخت رد عمل پر بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے. مودی سرکار کی سفارتی تعلقات معمول پر رکھنے اور تجارت معطل نہ کرنے کی درخواست. پاکستان سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل. پاکستان کشمیر کے معاملے پر کوئی لچک نہیں دکھائے گا. کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. معاون خصوصی اطلاعات فردوس شیخاوان کا دو ٹوک اعلان. کہتی ہیں پاکستانی سینماؤں میں بھارتی فلم ڈرامے دکھانے پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ. حکومت ہر وہ قدم اٹھائے گی جس سے کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے. بھارتی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج بڑھانے پر شدید تشویش. حریت رہنماؤں کی گرفتاریوں اور غیر انسانی سلوک کی مذمت. کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام. حکومت پاکستان کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قرارداد کا متن. دیکھے رہیں گے. بھارت کھیلیں گے. مودی کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں بلند ہونے لگی. بھارتی سپریم کورٹ کی وکیل میتھلی وجے کمار نے کہا صدر کے پاس آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا اختیار نہیں. اس سے بھارت کی پوزیشن کمزور پڑ گئی ہے. جبکہ دوسری جانب امریکہ، فرانس، بیلجیم، بنگلہ دیش اور ایران میں بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاجی مظاہرے. کیا چاہتے ہیں؟ ظالم ہو ایک جادرہ. دل دل. جان جان. کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر. آنسو ہیں تیری آنکھ میں، پیروں میں.
मासूम कश्मीरी घरों में महसूर, नक्ल हरकत पर पाबंदी, मोबाइल फोन खामोश, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मकबूजा वादी में 4 रोज से कर्फ्यू नाफिज। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए वादी में जंगल का कानून नाफिज कर दिया। सहाफत पर कदगन, सोमवार से कोई भी अखबार शाया नहीं हुआ। भारतीय एयरफोर्स ने 70 कश्मीरियों को आगरा मुंतकिल कर दिया। भारत का कौमी सलामती का मुशीर ड्रामाबाज निकला। शरीफ खानदान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। मरियम नवाज को कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी के बावजूद पेश न हुई। मरियम नवाज को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी हिरासत में ले लिया। नून लीग के नायब सदर की गिरफ्तारी इंतहाई ड्रामाई अंदाज में हुई। मरियम नवाज मामूल की हफ्तावार मुलाकात के लिए 12:06 पर अपनी बेटी माहनूर और बेटे जुनेद सफ्तर के साथ जेल गईं। अभी मुलाकात को 1 ही घंटा गुजरा था कि नैब की 6 गाड़ियां जेल पहुंच गईं। नवाज शरीफ ने नैब टीम को कमरे मुलाकात में आने की इजाजत दी। मरियम नवाज गिरफ्तारी की बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, अब्बू मुझे इल्म था कि ये होने वाला है। लाहौर नैब तीसरी गिरफ्तारी के लिए भी मुतहरिक। नवाज शरीफ के भतीजे अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी के लिए छापे। नैब टीम ने जाती उमरा, मॉडल टाउन समेत दीगर जगहों पर छापे मारे। सर्विसेज अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम ने नैब ऑफिस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का चेकअप किया। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर नून लीगी अरकान की कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। पार्लियामेंट के बाहर नून और जनून का टकराव। नायब सदर नून लीग की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा। नून लीगी अरकान असम्बली ने नैब ऑफिस के बाहर डेरे डाल लिए। कोट लखपत जेल के बाहर भी शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा भी मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर फट पड़े। हसन इकबाल ने कहा, बुज़दिल हुकूमत ने कौम की बेटी को गिरफ्तार करके कौम को तकसीम कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत मरियम नवाज की मकबूलियत देखकर खौफ में मुब्तला है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक फर्द वाहिद अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो सीख पा कहते हैं, लड़ना है तो मर्दों से लड़ें। खवातीन से लड़ाई बुज़दिलों का शेवा है। तारीख याद रखेगी। इंसाफ की बातें करने वाला इमरान खान अब एक डिक्टेटर बन गया। पहले जालिम आमियत ज़याद की थी और अब नया आमराना निज़ाम देख रहे हैं। ऑपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। बिलावल के तल्ख जुमलों का जवाब देने वज़ीर मवासलात मुराद सईद मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो को हादसाती सियासतदान ठहरा दिया। बोले, बिलावल भुट्टो में सच बात सुनने का हौसला नहीं। शरीफ खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग पर गिरफ्तार किया गया। बिलावल की गैरत इस वक्त कहाँ थी जब पाकिस्तान को लूटा जा रहा था। बात निकली है, ये दूर तक जाएगा। दूसरों की बहनें माएँ हैं, उन सबको फिर अरेस्ट किया जाएगा। हमारी खवातीन को गिरफ्तार कर रहे हैं, कल उनके घर की खवातीन भी गिरफ्तार होंगी। आसिफ अली जरदारी की मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। हुकूमत कल उनकी बहन को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आसिफ अली जरदारी के बयान पर एमक्यूएम पाकिस्तान नाराज। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। मुसलमानों ने हिजरत के वक्त अजीम जानी और माली कुर्बानियां दी। तारीख के सबसे बड़ी हिजरत की। अपना घर बार, अराजी और मालो दौलत सब को छोड़कर पाकिस्तान आए। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ख्याल।
आसिफ अली जरदारी की जिस्मानी रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत की ड्यूटी जज ने फरियाल तारपुर का 1 रोजा रिमांड भी मंजूर कर लिया। साबिक सदर से बच्चों की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला न हो सका। LNG स्कैंडल केस मिफ्ता इस्माइल और शरीक मुलजिम इमरान उल हक 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। FBR और ताजरों के दरमियान टैक्स अमूर पर मुज़ाकरात कामयाब। चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी का कहना है ताजरों के खिलाफ 30 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। FBR ताजरों के साथ मिल बैठकर फिक्स टैक्स स्कीम को हतमी शक्ल देने पर रजामंद हो गई। ताजरों ने मुल्की शटडाउन हड़ताल की कॉल वापस ले ली। झंग में चिन्योट रोड पर बस के रिक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 9 जाँ बहक। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। किमाड़ी, करंगी, शाह फैसल, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई की गई। अली जैदी के अपने हल्के के लोग इलाके में सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल पर नाला दिखाई दिए। मुल्क भर में मॉनसून एक्सप्रेस रवां धवा। महकमा मौसमियात ने कल से पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। ईद के मौके पर भी कई शहरों में बादल बरसेंगे। हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नए सीजन में खिलाड़ियों का नया तोहफा। 33 के बजाय सिर्फ 19 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। अजहर अली के A से B, मोहम्मद आमिर की C कैटेगरी में तनस्सुली, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से गायब। वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हो गए। ईद कुर्बान में चंद दिन ही बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी। कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने वाले भी खरीदारी पर मजबूर। कोयटा में शेर और बबर शेर की जोड़ी की धूम, मगर कीमत लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। मुल्तान में बबलू बादशाह कुर्बानी के जानवरों की तलाश में सरगर्दा। और जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सबसे लाली परचम हर तरफ लहलाने लगे। कौमी परचम के रंगों के बैचेस और झंडियों की फरोख्त में भी इजाफा। पेशावर में जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। नौजवान अहमद खान ने अपनी गाड़ी को खूबसूरती से सजा लिया। बारबेक्यू प्लान बने तो देवर के सारे दोस्त